Okay, we now come to the second part of the same case of developmental history or developmental delay case. So here another important problem is the child has got the bleeding. CT scan shows that collection of the fluid, rather blood. Now, what is the cause of this particular bleeding which has happened? Because there is no history of an injury, there is no forceps delivery. Okay, कुछ भी नहीं था, but still there is a bleeding. So now, do you think this baby has got some bleeding problems because of which this bleeding happened? ठीक है? Now 2-month-old baby will have some bleeding disorders, एक्कीमोसिस हुआ, ठीक है? क्या एक 2 महीने का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, तो क्या वहाँ पे विटामिन के डेफिशिएंसी हो सकता है? ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो ए बिग क्वेश्चन. विटामिन के हो सकता है इंजेक्शन ना लगा हो. हाँ, मे बी, बट क्या है कि 2-month-old विद क्या है कि नियोनेटल हेपेटाइटिस, सपोज बच्चे का न्यूबॉर्न है, नियोनेटल हेपेटाइटिस हो गया, तो जाके विटामिन के डेफिशिएंसी हो सकता है. वैसे भी लिवर इज वेरी वेरी इमेच्योर. ओके, एनीवे वी लुक इनटू दिस. नाउ व्हाई इन ए 2-month-old बेबी, why in a 2-month-old baby if it is not a coagulation disorder? अब क्वेश्चन आ गया कि ये जो ब्लीडिंग हुआ है सीटी स्कैन में जो आया है, सो आई विल से दिस इज ए coagulation disorder. Child is having some coagulation disorder, therefore child has got this particular CT scan bleeding. Okay, so but it is not like that. Why? Because if so, it has to be very severe, and only severe disorder which comes at birth is a factor 13 deficiency. Coagulation disorder नहीं है, क्योंकि coagulation disorder अगर होता तो ये बहुत सीवियर होता, एंड एट द टाइम ऑफ द बर्थ यूजुअली बाकी coagulation disorder नहीं आता, यूजुअली फैक्टर 13 डेफिशिएंसी. ओके, फैक्टर 13 डेफिशिएंसी से जो coagulation है, इफ दैट इज द केस यू कैनॉट इवन कट द कॉर्ड. जब आप कॉर्ड कट करेंगे वहाँ पे भी बहुत ब्लीडिंग होता, और वहीं पे ब्लीडिंग को स्टॉप करना मुश्किल होता. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. इमीडिएटली आफ्टर बर्थ कॉर्ड कटिंग ये सब नॉर्मल है. इफ द चाइल्ड इज रियली हैविंग सम ऑफ द coagulation problems there, definitely at the time of the cord cutting itself the physician would have been faced the problem. So it is not that one. Now we think ये जो ब्लीडिंग हुआ है, is it possible some platelet problems? प्लेटलेट्स में कोई प्रॉब्लम है इसकी वजह से. फॉर एग्जाम्पल इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा. ओके, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा की वजह से प्लेटलेट्स में कमी था वहाँ पे, और प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम की वजह से क्लॉटिंग नहीं बना और ब्लीडिंग रुका नहीं है. दिस इज द कॉज. ओके, नाउ यूजुअली ITP which happens, idiopathic thrombocytic purpura, this is because of a autoimmune cause. This is a autoimmune cause. So autoimmune disorder like ITP will come later at the age and not at 2 months. Now this is very important. मैं हमेशा बोलता हूँ autoimmune disorders will not occur in the early part of the life. Autoimmune disorders will come in the later part of the life. Okay, almost all 1 साल के बाद आते हैं. ठीक है. So autoimmune disorders means exaggerated immune response. Exaggerated immune response आने के लिए पहले immune system normal तो होना चाहिए. अब newborn में immune system is very immature. Okay, only a mature immune system can create autoimmunity. ठीक है. So जब immune system itself is very weak and not at developed completely, it cannot create an autoimmune reaction because it is not fully matured. Okay, so this is one of the causes. Therefore, even autoimmune cause of ITP is also excluded here. Okay, so if it is happening at the 2-month-old baby with ecchymosis, maybe hepatitis may be the cause. Hepatitis may be the cause. So 2 months is not a common age of a seizure. Now, okay, this much is clear. Now, there is one more important point. इस बच्चे को 2 महीने में सीजर आ गया. 2 महीना कभी भी एक सीजर के लिए कॉमन एज ग्रुप नहीं है. सीजर के लिए कॉमन एज ग्रुप कब है? इमीडिएटली आफ्टर बर्थ है. Immediately after birth, child may have the seizures because of different reasons: deficiency problem, birth asphyxia, meconium aspiration, intraventricular hemorrhages, pyridoxine dependency, pyridoxine deficiency, ठीक है, hypoglycemia. So all these problems can lead to seizure. Therefore, first 10 days of the life, child is more prone to seizure. Okay. Now at the 2 month, baby is actually growing well, and वहाँ पे seizure आने के लिए क्या कारण है?
वहां पे सीजर आने के लिए क्या करना है? सो मोस्ट कॉमन एज इज न्यूनेटल एज। उसके बाद 6 महीने के बाद जो है सीजर आ सकता है। और इसके अलावा सीजर कब आएगा? अगर बच्चे को कोई फीवर वगैरह हुआ, मेनिंजाइटिस हुआ, तो उसका कॉम्प्लिकेशन के रूप में सीजर आ सकता है। अदरवाइज 2 month एज इज नॉट ए वेरी कॉमन एज ऑफ एनी सेट ऑफ type of seizure if it is not associated with any type of injuries or some other causes. Okay, injuries नहीं हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, so fever नहीं हुआ, so it's not a common. Even for the febrile seizure also this is not the common age. Okay, so this is so एक इस बच्चे को 2 month में जो है if he is getting the seizure, definitely it would have been a very odd cause. कुछ odd cause है, not a common or normal cause. Let us see further. Now, again the point comes whether this child has got any metabolic disorder. Metabolic disorder है क्या? शुरू में हमने जो देखा हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, तो वो सब एक्सक्लूड हो गया। नाउ 2 महीने में अगर उसको बाकी कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है क्या, लाइक इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है या एक्वायर्ड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, in the first 2 months of the life, child was normal, which may point towards the metabolic disorders. Okay, so in the present case, the first 2 months of the life, child is normal. पहले बच्चा नॉर्मल था, है ना? पहले 1-2 दिन में उसको वोमिटिंग वगैरह हुआ था और उसके बाद बच्चा नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं था। और उसके बाद जो है उसको जॉन्डिस वगैरह डेवलप हुआ, वो आपको पता है, ठीक है। जॉन्डिस के लिए उसने एडमिट हुआ था, ठीक है। और उसके बाद उसको वापस सीजर आ गया, अगेन ही डेवलप द सीजर अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री। नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर सीजर विच केम इन द 2nd month, है ना। उसका कारण क्या हो सकता है? फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इज ऑलवेज response is always cerebral irritation leading to vomiting and then lethargy. So if not pick up, then there will be a seizure. So any seizure come, we will see whether it is acute symptomatic, remote symptomatic, idiopathic, ठीक है। जो भी सीजर आता है, so उसको हम usually we will classify as acute symptomatic, remote symptomatic or idiopathic. Now this seizure which came after 2 months of age, now we are not in a position to now diagnose whether it's a metabolic है, ये है, वो है, कुछ भी हमसे नहीं हो रहा है। Now we go on the other way. The seizure which is coming, you can divide the seizure into 3 types. One is acute symptomatic, acutely हो रहा है और symptom के साथ आ रहा है। Remote symptomatic, ठीक, and idiopathic, where the cause is not known. What do you mean by acute symptomatic? Acute symptomatic means insult is occurring at the time and there is sudden symptom. For example, in case of birth asphyxia, वहीं पे जो है इंसल्ट हुआ, इंसल्ट होते जो है उसको सीजर डेवलप हुआ, एज इन केस ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज एक्सेट्रा इन ए नॉर्मल चाइल्ड। दिस इज कॉल्ड एज एक्यूट सिम्टोमेटिक प्रेजेंटेशन। Now what do you mean by remote symptomatic? Remote symptomatic means insult occurred much before. इंसल्ट बहुत पहले हुआ है और अभी जाके सिम्टम्स आ रहे हैं। सिम्टम्स आर अपियरिंग नाउ आफ्टर लॉन्ग इंटरवल। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ रिमोट सिम्टोमेटिक। इस बच्चे में 2 महीने में उसको सीजर आ गया, क्या ये हो सकता है कि इसका जो कॉज पहले से ही है और अब जाके उसका सीजर आ रहा है? दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिमोट सिम्टोमेटिक सीजर। ओके, सो ये जो इंटरवल है जो रिमोट पीरियड में होता है, सो दिस इज कॉल्ड एपिलेप्टोजेनिक फेज। एपिलेप्टोजेनिक फेज, दैट मीन्स द इंसल्ट वुड हैव बीन हैपेंड इन द पेरिनेटल पीरियड इटसेल्फ, और इंसल्ट वुड हैव बीन हैपेंड इन द अर्ली पोस्टनेटल पीरियड इटसेल्फ। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड भी हुआ, थर्ड डे ही हो सकता है, और बट वो सीजर के रूप में आ गया, सीजर आ गया उसको आफ्टर 2 मंथ, दैट इज कॉल्ड एज रिमोट सिम्टोमेटिक सीजर। ठीक है। Third one is, as I told, idiopathic, where the cause is not known, seizure is coming. Now, in this case, there may be remote symptomatic seizure as a child is IUGR. यहाँ पे बच्चा क्या था? IUGR था, and there may be some events happen in the antenatal period or maybe in the prenatal period
and which leads to the seizures in the later part of the life. And we cannot diagnose any seizure as idiopathic seizure before 5 years. कोई भी seizure को आप idiopathic seizure, idiopathic means cause is not known, you cannot diagnose any seizure before 5 years. At the end of the 5 years the brain is completely grown. हम क्यों एक criteria रखते हैं? At the age of 5 years the completion of the brain growth happens, and then also if you are not able to find out the cause of the seizure, then it is called as a idiopathic seizure. Therefore it should be waited for 5 years. So looking at this case, इस केस में हम देखेंगे it looks like a remote symptomatic, because acute symptomatic तो नहीं है क्योंकि cause नहीं मिला है, idiopathic आप बोल नहीं सकते, ठीक है. So this may be a case of a remote symptomatic seizure. Now comes which remote symptom might have been cause of this seizure. ठीक है, हमने मान दिया कोई रिमोट है, पहले से ही कोई कॉज, तो उसकी वजह से अभी सीजर आ रहा है. तो कौन सा रिमोट कॉज है? वो जो रिमोट कॉज है क्या वो साइलेंट कॉज है, एक्टिव कॉज है? दो हो सकता है. जो रिमोट है, कॉज इज रिमोट पहले हुआ है, वो पहले द कॉज इज रिमोट एंड इट इज साइलेंट, कॉज इज रिमोट एंड इट इज एक्टिव. व्हाट आर द साइलेंट कॉजेस ऑफ सीजर? सीजर आने के लिए साइलेंट कॉजेस क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया. वहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया हुआ था और हाइपोग्लाइसीमिया होने के बाद जो है वहाँ पे थोड़ा इंजरी हुआ एंड दैट इज अ कॉज ऑफ द सीजर. यूजुअली हैव सम प्रॉब्लम ऑफ लेथार्जी, वोमिटिंग एक्सेट्रा, बट वी डोंट नो डज इट हैड पॉलीग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया एट बर्थ. ओके, व्हाट आर द साइलेंट कॉजेस ऑफ दिस सीजर? मे बी हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि मदर क्या बोल रही है? वोमिटिंग इज देयर, लेथार्जी इज देयर एट द टाइम ऑफ द बर्थ फॉर फर्स्ट 3 days. मतलब कॉज वहीं पे से था, उस टाइम में उसको सीजर नहीं आया, बाद में सीजर आ गया. मे बी ए साइलेंट कॉज, साइलेंट रिमोट कॉज, साइलेंट रिमोट कॉज. बट एग्जैक्टली वी डोंट नो in this case that whether baby has got hypoglycemia at the time of the birth or not, वो हमें हिस्ट्री में नहीं पता है. anyway, but generally the hypoglycemia will be mild and we don't have significant brain damage and seizure may not be an issue. Okay, although there is a hypoglycemia at the time of the birth, hypoglycemia may cause the seizure, but we say that usually hypoglycemia will not cause much significant brain damage. Localized brain damage, especially for the visual area, it may be there. ठीक है, विजुअल एरिया का जो रेटिना वगैरह ये है ना, वहाँ पे वो ज़्यादा इफेक्ट करता है. नॉट लोकलाइज्ड और सिग्निफिकेंट. एंड सीजर मे नॉट बी ए बिग इशू. सीजर जो है आ गया तो अभी वो ट्रांसिएंट आ सकता है, बट ऐसे बड़ा सीजर नहीं आ सकता. माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया विच इज मिस्ड एट द बर्थ is the commonest cause of developmental delay at the later school age. Now this is very important. As mild hypoglycemia will not cause much problems like seizure etc., this hypoglycemia left unnoticed, and such a way left unnoticed hypoglycemia is also one of the common cause of developmental delay in the later part of the life like school ages. वहाँ पे कुछ brain damage वगैरह हुआ है but वो mild है और इतना ज़्यादा वो एट्रीब्यूट माने एग्जिबिट नहीं हुआ, और इसका इफेक्ट हमें बाद में पता चल सकता है, बाद में पता चल सकता है. दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी. एनीवे दिस केस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो इसलिए हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं. सो माइल्डर द हाइपोग्लाइसीमिया, माइल्डर द ब्रेन डैमेज, बट इन दिस चाइल्ड द सीजर ऑकर्ड एट 2 months, so there must be a significant hypoglycemia at birth if we assume hypoglycemia is the cause. Okay, milder the hypoglycemia, milder will the brain damage. ठीक है, so we know that seizure means it is a grey matter disease. a grey matter effect हुआ है इसका. Okay, so in this child seizure 2 महीने में आ गया, so there must be some significant hypoglycemia. milder है तो school age में आ जाएगा. milder hypoglycemia बच्चे को हुआ है, left unnoticed, then during the school age we come to know that child is having some developmental delay, cognition नहीं है उसका, ठीक है, और इतना जल्दी पकड़ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्लास, तो इस टाइप का प्रॉब्लम्स उसको आएगा. बट यहाँ पे 2 महीने में ही प्रॉब्लम आ गया ना, सीजर आ गया ना, तो इसका मतलब है कि शुरू में जो उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है वो माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है, शायद
सिग्निफिकेंट हाइपोग्लाइसीमिया, बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, इसलिए 2 महीने में ही उसका रिजल्ट आ गया उसको. नाउ विच मीन्स सीजर वुड हैव बीन कम still earlier. We commonly mother had a gestational diabetes which in which the mother don't know may lead to hypoglycemia. Okay. अब hypoglycemia कितना सब हम बात कर रहे हैं. So sometime what happens, a pregnant lady is not knowing that she is having gestational diabetes. Okay, diabetes mellitus. So in that condition, mother को gestational diabetes है बोल के identify हो गया, then immediately after the birth we take care of the baby so that baby will not have any hypoglycemia immediately after birth. You know that. Okay, one of the most common complication of a diabetic mother baby is immediately after birth is a hypoglycemia. Okay, तो जिस मदर को पता ही नहीं है कि उसको मेटरनल डायबिटीज है तो वो तो केयर नहीं करेगी, ठीक है, और पता भी नहीं चलेगा किसी को भी. सो दैट मे बी वन ऑफ द कॉज दैट दिस बेबी हैज गॉट हाइपोग्लाइसीमिया. ये भी हो सकता है एक कॉज. Okay, so one of the silent remote cause is a hypoglycemia. Another silent remote cause is silent cause of remote symptomatic seizure is malformation. Very important, malformation. कोई ना कोई एक malformation वहाँ पे है और इसकी वजह से धीरे धीरे प्रॉब्लम चल रहा है, और एनी क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स. ओके, ये भी साइलेंट रहेगा. बच्चे को कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम चल रहा है, इसका प्रेजेंटेशन धीरे धीरे आएगा. ओके, सो इफ दैट इज सो, व्हाई डिड इट कम फॉर ओनली 1 day फॉर 3 times एंड देन स्टॉप्स. सो समझ में आ गया. अब हाइपोग्लाइसीमिया तो ठीक है. दूसरा साइलेंट कॉज क्या है कि हो सकता है कि क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है या कोई मालफॉर्मेशन है. बट यहाँ पे पेशेंट क्या बोल रहा है, 3 एपिसोड आ गया, 2 महीने के बाद उसको एक दिन सीजर शुरू हो गया और एक ही दिन में उसको 3 एपिसोड आ गया और उसके बाद बंद हो गया. दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन दिस केस. नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द कॉज फॉर द सेम. एंड इफ इट इज मालफॉर्मेशन रिलेटेड, दैट इज साइलेंट कॉज ऑफ रिमोट सिम्टोमेटिक सीजर, लाइक मालफॉर्मेशन है या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, तो एक ही दिन क्यों आ गया और एक ही दिन में जो है 3 बार आ गया, उसके बाद बंद क्यों हुआ? दिस इज अनदर बिग कॉज क्वेश्चन. So it would have been continuous. If it is genetic, if it is chromosomal, or if it is malformation, एक बार शुरू होने के बाद वो continuous आना चाहिए था. But the fact is, defect is there, but defect does not manifest. So it takes some time to manifest. So but later, after 2 years, she come to know that he has got similarly the epilepsy, there will be always a triggering factor. Okay, that means यहाँ पे क्या हुआ कि there is episodes of seizure on the same day for 3 times. Okay, how you explain this? What explanation you will give? Okay, possibilities are there कि डिफेक्ट वहाँ पे है, डिफेक्ट वहाँ पे था और अब तक जो है वो सीजर नहीं क्रिएट कर रहा था, बट कोई ना कोई एक ट्रिगरिंग फैक्टर उसको उस दिन मिल गया, इसलिए उसका सीजर जो है ट्रिगर हो गया, एक ही दिन में 3 बार आ गया. उसके बाद वो ट्रिगरिंग फैक्टर हट गया और उसके बाद वो वापस उसको सीजर नहीं आया. दिस एक्सप्लेनेशन कैन बी गिवन. मेनी टाइम्स इट हैपेंस. डिफेक्ट इज देयर बट विदाउट अ ट्रिगरिंग फैक्टर. जस्ट लाइक कि हम बहुत गुस्से वाले आदमी है, वही एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है. अगर कोई हमें गुस्सा दिलाए तो हम बहुत गुस्से वाले हैं, अगर कोई गुस्सा नहीं दिलाए तो हम बहुत शांत लोग. Okay, like the defect is there, but there is no triggering factor. There is no triggering. So then it may be silent. So this possibility is there. Chalo. Case is very interesting. Now, it is told that the child has developmental delay. Now, अभी क्या बात, उसके बाद बताया कि हेड कंट्रोल नहीं हुआ उसका, नेक कंट्रोल, नेक होल्डिंग, हेड कंट्रोल, और उसके बाद रोलिंग ओवर 1 महीने में, 1 साल में हुआ. तो डेवलपमेंटल डिले भी बताया इसमें. ओके, सो इट इज टोल्ड दैट दिस चाइल्ड हैज गॉट ऑल्सो द डेवलपमेंटल डिले. ओके, नाउ यू हैव टू सी वेदर दिस डेवलपमेंटल डिले इज अ स्टैटिक और प्रोग्रेसिव. टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू गो फॉर DQ टेस्ट. पता है आपको डेवलपमेंटल कोएफिशिएंट. दिस शुड बी डन फॉर ईच डोमाइन. चारों डोमाइन के लिए हमको करना पड़ेगा. एट 1 year ही इज नॉट एबल टू होल्ड द हेड. सी इन दिस केस एट 1 year ही इज नॉट एबल टू होल्ड द हेड but could able to roll over.
सी दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। वो सिर जो है उठा नहीं पाएगा, उठा नहीं रहा है वो, बट रोल ओवर हो गया उसका। ओके, सो दिस इज समथिंग अनयूजुअल डेवलपमेंट, बिकॉज रोलिंग ओवर, नेक होल्डिंग इज ऑल्सो मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन है ना, मसल से रिलेटेड है, एंड रोलिंग ओवर इज ऑल्सो मोटर डेवलपमेंटल है, बट एक हो गया, एक नहीं हो रहा है। ओके, so this is something unusual development. Suppose if a 11-year-old girl developed menstruation but not developed the breast, we cannot say that this is a part of the early development, isn't it? Just like हम puberty में जो देखते हैं, 11 साल हो गया, 11 साल का बच्चा है, उसका menstruation शुरू हो गया, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? आप इसको ये नहीं बोल सकते कि अर्ली डेवलपमेंट है, ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसी तरीके से यहाँ पे भी वो इज नॉट एबल टू लिफ्ट द हेड, बट द रोलिंग ओवर इज देयर, सो समथिंग इज अनयूजुअल नाउ। सो लेट्स सी, व्हेन इट इज रॉन्ग शी मे हैव सम, ओके, सो लेट अस सी, so what actually happens is there is a deviance, so why this rolling over happened? There is a hypertonia in the child, वो भी है, केस में दिया है, hypertonia in the child, because which the child is able to sit and stand when somebody is holding him or roll over etc, and it is not because whether he gained those milestone. Got the point? यहाँ पे एक बात क्लियर है, what is that? रोलिंग ओवर हुआ है, हेड कंट्रोल नहीं आया, इसका मतलब है रोलिंग ओवर जो हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ हाइपरटोनिया ऑफ द मसल, ओके, स्पैस्टिसिटी ऑफ द मसल। मैंने एक बार बताया था कि डिफरेंशियल डेवलपमेंट बोलते हैं हम इसको, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है कि द रोलिंग ओवर एंड अगेन दे आर टेलिंग दैट ही इज एबल टू सिट विद द सपोर्ट एंड ऑल दोज थिंग्स, वो क्या हुआ, वो जो है मसल का हाइपरटोनिया की वजह से हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ द नॉर्मल डेवलपमेंट, नॉर्मल डेवलपमेंट की वजह से नहीं है। सो नाउ वी हैव टू सी डज द चाइल्ड इज डूइंग अदर थिंग्स विच आर नॉर्मल फॉर दैट एज। एक तो हो गया रोलिंग ओवर कर दिया और पकड़ने से बैठ जाता है, ये तो कर रहा है वो, इट मे बिकॉज ऑफ द स्पेसिसिटी, ओके, बट वेदर ही इज डूइंग ऑल द अदर एक्टिविटीज ऑल्सो रिलेटेड टू द सेम एज। सिमिलरली व्हेन एवरीथिंग इज अचीव्ड नॉर्मली and only head control is lagging behind, then it could be some problem of the head, like large head, yes, ठीक है, large head, heavy head, maybe hydrocephalus, we have to think about it. So concept of differential development जो मैंने बताया था, differential development should be kept in mind. Child is laughing since beginning okay, hold the head earlier, okay, so this is now other silent causes, okay, other silent causes. So this is a quite interesting case है ना, बहुत सारी चीज़ें उसमें, हम उसमें कंक्लूजन में अभी आ पाएंगे मुझे नहीं पता है, बट so far what we can understand, so ये प्रोग्रेसिव डिसीज, दिस लुक्स लाइक ए प्रोग्रेसिव डिजीज, isn't it? धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, सीजर बाद में आया था, अब दोबारा सीजर कब आएगा पता नहीं, अभी तो बच्चे को FTT भी है, फेलियर टू थ्राइव भी है। सो दिस लुक्स लाइक ए प्रोग्रेसिव डिसीज, मीन्स नॉट ऑलवेज अरेस्ट इन द डेवलपमेंट। प्रोग्रेसिव डिसीज, सो डेवलपमेंट एक जगह में आके रुक नहीं पाता है, डेवलपमेंट का जो डिले है वो भी कंटिन्यूसली डिटोरिएट होता चलता है, ओके। सो दिस ए प्रोग्रेसिव डिसीज मीन्स नॉट ऑलवेज अरेस्ट इन द डेवलपमेंट बट स्लोली रिग्रेशन ऑफ द माइलस्टोन्स एंड ऑल्सो सजेस्ट ए स्लोली प्रोग्रेसिव डिसीज। इतना तो क्लियर है इस केस में। Child with a DQ of motor milestones is 50 at 6 months and it comes down to 20 by 1 year, suggests that there is a slow regression of the developmental milestone. So if opposite to this happens, it is a non-progressive disease, है ना। प्रोग्रेसिव नॉन प्रोग्रेसिव कैसे हम डिसाइड करेंगे? DQ से, ठीक है। 6 महीने में उसका जो DQ है मोटर माइलस्टोन्स के लिए वो 50 था, 12 महीने में उसका जो DQ है मोटर माइलस्टोन के लिए वो 20 है। इसका मतलब है चाइल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स रिग्रेशन, ओके। सो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव डिसीज इज नॉट ओनली द रिग्रेशन ऑफ द माइलस्टोन, इट्स स्पीड में स्लो डाउन, ठीक है। ठीक, प्रोग्रेसिव डिसीज अगर चल रहा है तो उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? सिर्फ रिग्रेशन हो गया इसलिए वो प्रोग्रेसिव है, हाँ ये सही है। इसके अलावा कभी कभी डेवलपमेंट का स्पीड कम हो जाता है, मतलब रोल ओवर एट 6 मंथ में होना था वो 8 महीने में हो गया, और स्टैंडिंग जो है
उस हिसाब से कब होना था, 14 महीने में होना था, 2 महीने लेट है ना, रोलिंग ओवर 2 महीने लेट है, 8 में हो गया। तो जो स्टैंडिंग और वॉकिंग होना था उसको 12 महीने में, वो 14 महीने में हो गया। ठीक है, 14 महीने में होना चाहिए था, नहीं, उसका वॉकिंग आ गया 16th मंथ में। तो ये क्या है, मोटर डेवलपमेंटल डिले इज हैपनिंग हियर ऑल्सो, स्लोली प्रोग्रेसिव। Okay, so this can also happen. So probably there is a progressive disease in this child and cause looks like a antenatal. Okay, so this ये बच्चा जो है इसमें एक प्रोग्रेसिव डिसीज चल रहा है, इसका कॉज मे बी फ्रॉम द एंटीनेटल पीरियड इटसेल्फ, IUGR से ही चलता होगा। ओके, and now also it is continuing. Most commonly it may be some of the complications related to torch infection. एंटीनेटल पीरियड में अगर मदर को कुछ टॉर्च इन्फेक्शन आइडेंटिफाई नहीं हुआ है और उसका कॉम्प्लिकेशन जो वहाँ से शुरू हुआ शायद अभी तक भी चलता होगा, दैट इज ऑल्सो ये पॉसिबिलिटी। ये सीजर, शुरू में जो वोमिटिंग हुआ, ठीक है, डेवलपमेंटल डिले चल रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ सम ऑफ द टॉर्च इन्फेक्शन एंड दिस IUGR मे बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ टॉर्च इन्फेक्शन। दिस मच ऑफ कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन हिस्ट्री। हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कुछ नहीं है ना इसमें। So this is a probable diagnosis of this particular case. Okay, so this is how we have to approach in a case of a developmental delay. This is one example. So many approaches are there. Thank you very much.